Hi, good morning. Good morning, ma'am. Hi, good morning. Good morning. Very good Today is morning, a Sunday, so ma'am. we Good can morning, maybe ma'am. good morning. So we can start with a few affirmations, maybe for 3 to 4 minutes in the Brahm Muhurat. I mean, at the time of the sunrise, the sun is just rising right now here in India and in Delhi. So you can just start with a few affirmations. So I will speak the sentence और आप उसको अपने मन में आप repeat करना. And they are very, very powerful because उससे लगातार जब कोई चीज करते हैं, like you know, Ibrahim says that 68 seconds में अगर हम लगातार एक zone में रहते हैं, तो the momentum gets built inside our body, and it is equal to 2000 man hours. मतलब इतना powerful होता है. So we'll just do a little self talk, affirmative good self talk. So yeah, we'll start with this. I love my body. I am patient. I have fun wherever I go and whatever I do. I am rising above every obstacle. I am talented and getting better and better every day. I am thriving and flourishing in life. I am strong and healthy. I am in the best shape of my life. I am beautiful inside and out. I am fit, firm, and healthy. I am full of energy and vitality. I have an amazing immune system which always keeps me healthy. I am dedicated to improve my health and fitness. I am easily shedding extra fat. I am enthusiastic about life. I am a confident person. I am radiant and youthful. I am a victorious person. I am a blessed child of the universe. I am enjoying my life full of freedom. I am enriched in everything I do. I am a money magnet. I attract money from multiple sources of income with ease. I am wise and protected with my finances.
I am accomplishing everything I want to do. I am courageous. I am excited to see constant breakthroughs in my life. I am enjoying the gifts of the 5 elements. I am always at the right place at the right time. I am a genius and always flowing with creative ideas. I love myself. I am totally in love with life. I am appreciated and loved by all. I have all the power to achieve my goals. That's it. So we'll start with our chapter number 3, the magical relationships. It's a beautiful, powerful chapter if we do it the way the book tells us. So what happens is that जब भी हमारी रिलेशनशिप में कुछ गड़बड़ होता है तो हम मैजिकल रिलेशनशिप्स जाते हैं, फोटो रखते हैं सामने डिजिटल गैलरी में या हार्ड कॉपी फोटो की, और उसमें जो हमको लिखने होते हैं 5 पॉइंट्स, है ना, एज इफ यू आर टॉकिंग टू देम, तो ऐसे लिखने होते हैं। लेकिन उसके बाद एक और प्रैक्टिस होती है इसी में कि उसको 3 बार और निकाल के वो फोटो देख के थैंक यू बोलना होता है। दैट वी मे नॉट बी डूइंग। सो प्रैक्टिस कंप्लीटली करनी होती है। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ह्यूमन लाइफ में, क्योंकि मैन इज द ओनली सोशल एनिमल, है ना, ह्यूमन बीइंग्स, सो रिलेशनशिप्स बहुत मैटर करती हैं। उनकी एनर्जीज, उनकी हैप्पीनेस, उनकी विक्ट्री, कोई भी आइसोलेशन में नहीं रह सकता। रिलेशनशिप्स होती हैं और अलग अलग तरह की रिलेशनशिप्स होती हैं। रिलेशनशिप्स विद योरसेल्फ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इज दैट हाउ डू यू वैल्यू एंड रिस्पेक्ट योरसेल्फ, है ना। फिर उसकी होती है दैट ऑफ कोर्स योर इमीडिएट फैमिली, that is your parents, your spouses, your children, your brothers, your sisters and everyone. फिर उसके बाद होती है close circle of love of the close friends who are almost like family but they live in different houses but they are so much like family, you know. And then of course comes your community, your office co-workers. So सारी relationships बहुत important होती है। मतलब ये नहीं कि आप एक को दूसरे की तरफ वे करते हो ज्यादा। So the most important thing is that that's what gives meaning to our life. सोचो अगर आप इस पूरी दुनिया में अकेले होते तो क्या होता है ना। I mean, like it would have been really weird. मतलब there was no reason to buy a bag and go shopping and this and that. So the whole essence of the human life is about relationships. इसीलिए जो फर्स्ट सेकेंड चैप्टर था मैजिक में वो जनरल था कि सुबह उठते से ही आपको ग्रैटिट्यूड करना है, रात को सोने के जस्ट पहले फिर से ग्रैटिट्यूड करना है मैजिक रॉक के साथ में। अब हम कॉन्सेंट्रेटेड ग्रैटिट्यूड कर रहे हैं एक एक लाइफ के एस्पेक्ट को पकड़ पकड़ के। Okay, so the first one in that comes is relationship, because that is the whole essence of living as a human. Of course, उसके बाद कल health आएगा, ठीक है, उसके बाद money आएगा. So it goes like that in order of importance. So yeah, I'll just bring that on the screen, and we have the debutant Deepa reading for us. Yeah, ma'am. Good morning, ma'am. Deepa Rathore. One second. So good morning, Deepa. I'm sorry. Good morning. My systems. Yeah. Take 3. Can I? एक सेकेंड तो इसकी इमेज हम देख लेते हैं पहले, क्योंकि इमेज में बहुत कम्युनिकेशन, इमेज के थ्रू बहुत कम्युनिकेशन होता है इस बुक में। सो वी कैन सी दैट एक ग्रैटिट्यूड जर्नल, जो हमारा जर्नल है जिसमें हम ग्रैटिट्यूड लिखते हैं, वो रखा हुआ है। और उसके साथ में 3 फोटो रखी हुई हैं, 3 अलग अलग लोगों की फोटो रखी हुई है।
दैट मीन्स कि आज हमको 3 लोग चूज करने थे और उनके बारे में, और वी कैन सी अ लॉट ऑफ मैजिक अराउंड दैट. सो 3 लोग जो क्लोज हैं और इस ग्रैटिट्यूड जर्नल में हमको उनके लिए ग्रैटिट्यूड लिखना है. हाँ जी, अब आप पढ़िए. Day 3, magical relationship. Imagine if you were the only person on earth. You would have no desire to do anything. What would be the point in creating a painting if no one could see it? What would be the point in composing music if no one could hear it? What would be the point in inventing anything if there was no one to use it? There would be no reason to move from one place to another because wherever you went would be the same as where you were. No one would be there. There would be no pleasure or joy in your life. It's your contact and experiences with other people that give your life joy, meaning, and purpose. Because of that, your relationship affect your life more than anything else. To receive the life of your dreams, it's vital that you understand how your relationships affect your life now and how they are the most powerful channels for gratitude to start magically changing your life. Science is now confirming the wisdom of the great sages of the past, with research studies showing that people who practice gratitude have closer relationships, are more connected to family and friends, and have other people look upon them favorably. But probably the most astounding statistic that has come out the research studies is that for every one complaint about another person, whether in the or world, there have to be 10 blessings for the relationship to flourish. Any less than 10 blessings for every one complaint and the relationship will deteriorate. And if the relationship is a marriage, it will most likely end in divorce. Yeah, we'll just take a little break here क्योंकि थोड़ा सा लंबा चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट है. ये वाली जो चीज है ना, एक कंप्लेन के लिए 10 ब्लेसिंग्स लिखना, ये हमको करना शुरू करना पड़ेगा. The moment we make one complaint, not just about relationship, अगर आपने मनी के लिए भी किया है, अगर आपने किसी भी चीज के लिए किया है, चुपचाप अपना ग्रेटिट्यूड चैनल निकालो और उसमें 10 ब्लेसिंग्स लिखो उसी चीज के बारे में. अगर पर्सन के बारे में किए तो 10 ब्लेसिंग्स उस पर्सन के बारे में. हम ऐसे ही सीखेंगे और कोई तरीका नहीं है सीखने का. देन वी विल रियलाइज दैट आज 50 बार ब्लेसिंग्स लिखनी पड़ी क्योंकि 5 कंप्लेन मुंह से निकल गई थी. इस तरह धीरे धीरे करके हम पॉलिश होते जाएंगे. देयर वाज अ टाइम जब मैंने 500 भी लिखी हैं ब्लेसिंग्स. सोचो इतनी सारी कंप्लेन करी थी किसी भी चीज के बारे में. So it is relationships that give us a lot of meaning and joy to our life, right? I mean, like कोई भी काम हम करते हैं, we go for weddings, it is people. When we eat food, somebody is cooking or we are eating, so we feel that joy. When we go for travels, there are people. When we live in the home, there are people. When we go to office, there are people. When somebody is singing or learning a guitar, you're learning from someone. सो हर तरह की रिलेशनशिप, मेंटर डिसाइपल की होती है, फ्रेंड्स की होती है ना, हर तरह की रिलेशनशिप्स होती है दैट एक्चुअली गिव्स अ लॉट ऑफ मीनिंग टू लाइफ. अदरवाइज व्हाट वुड बी द प्लेजर एंड जॉय इन योर लाइफ? कुछ नहीं. अगर आप अकेले इंसान होते दुनिया में, सो हाउ बोरिंग इट वुड हैव बीन. दैट्स व्हाई ये सबसे इंपॉर्टेंट शिप होती है रिलेशनशिप, है ना. एंड इट सेज दिस इज सच एन इम्पॉर्टेंट थिंग दैट आपके कॉन्टैक्ट और आपके एक्सपीरियंसेस जो लोगों के साथ होते हैं, उन्हीं से तो जॉय, मीनिंग एंड पर्पस लाइफ का होता है, इजंट इट? So this is how actually relationship सबसे ज्यादा हमारी लाइफ को अफेक्ट करती है. So इसमें लिखा है that पुराने जो उपनिषद, वेदास और स्पिरिचुअल टीचिंग्स में ये था, that उनमें था जो अब साइंस भी बैक करती है आफ्टर डूइंग ऑल द रिसर्चेस एंड ऑल that people जो लोग प्रैक्टिस करते हैं ग्रेटिट्यूड, उनकी बहुत क्लोज रिलेशनशिप्स होती हैं, वो बहुत कनेक्टेड होते हैं फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड हैव अदर पीपल लुक अपॉन देम फेवरेबली, इजंट इट? आप सबने देखा होगा कि आपके सर्कल ऑफ फ्रेंडशिप्स एंड रिलेशनशिप्स एक्सपैंड ही होंगे जैसे आप ग्रेटिट्यूड जर्नी में आते हो, है ना. एवरीबडी हैज विटनेस्ड दैट वी स्टार्ट मेकिंग एंड वी हैव मोर मीनिंग इन द रिलेशनशिप्स, मतलब मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बनते हैं. और एक और चीज रिसर्च ने बोला है
that for everyone complain, whether it is in thought, अगर मन में भी गलत सोच आई है किसी के लिए, ठीक है, in thought or in word, 10 blessings उसके लिए लिखनी पड़ती है, otherwise the relationship will totally perish. So yeah, we'll read from here. Yeah. Gratitude makes relationship flourish. As you increase your gratitude for any relationship, you will magically receive an abundance of happiness and good things in that relationship. And gratitude for your relationships doesn't change only your relationships, it also changes you. No matter what your temperament is now, gratitude will give you more patience, understanding, compassion, and kindness to the point where you won't even recognize yourself, the little irritations you once felt, and the complaints you had in your relationships will disappear. Because when you are truly grateful for another person, there is nothing you want to change about that person. You won't criticize, complain about, or blame them because you are too busy being grateful for the good things about them. In fact, you won't even be able to see the things you used to complain about. We can only be said to be alive in those moments when our heart are conscious or of our treasures. Thornton Wilder, writer and playwright. Words are very powerful. So when you complain about any person, you actually harm your life. It's your life that will suffer. By the law of attraction, whatever you think or say about another person, you bring to you. This is the very reason This is the very reason why the greatest minds and teachers of the world have told us to be grateful. They knew that for you to receive more in your life, for your life to magically increase, you have to be grateful for others just as they are. What if every person close to you said, I love you just the way you are? How would you feel? Today's magical practice is being grateful for people just as they are. Even if all of your relationships are currently good, they will increase with more magnificence through this practice. And with everything you find to be grateful for in each person, you will be gratitude perform in breathtaking magic, and your relationships will be stronger, more fulfilling, and more enriching than you ever thought they could be. Choose three of your closest relationships to be grateful for. You might choose your wife, your son, and your father, or your boyfriend, your business partner, and your sister. You might choose your best friend, your grandmother, and your uncle. You can choose any three relationships that are important to you as long as you have a photograph of each person. The photograph can be just of the person or the both of you together. Once you have selected your three relationships and photographs, you are ready to set the magic into motion. Sit down and think about the things you are the most grateful for about each person. What are the things you love the most about this person? What are their best qualities? What would be grateful for their patience, ability to listen, talents, strength, good judgment, wisdom, laugh, sense of humor, eyes, smile, or kind heart? You could be grateful for the things you enjoy doing with the person, or you can recall a time when the person was there for you, cared for, or supported you. After you are spent some time thinking about that you are grateful for about the person, put their photograph in front of you and with a pen and notebook or on your computer. Choose the five things you are the most grateful for. Look at the photograph of the person as you make your list of five things. Begin each sentence with the magic words.
Thank you. Address the person by their name and then write what you are grateful for. Thank you, their name, for what. For example, thank you, John, for always making me laugh, or thank you, Mom, for supporting me through college. When you are finished your list for all three people, continue with this magical practice by taking the photographs with your today and putting them in a place where you will see them often. Whenever you look at the photographs today, thank the person by saying the magic words thank you and the person's name. Thank you, Helly. If you are moving around a lot, carry the photographs with you in your bag or pocket and make an effort to look at the photographs 3 times during the day, following the same procedure. Now you know how to use gratitude's magical power to transform your relationships into magical relationships. Although it is not part of the requirement of this book, you may want to take this amazing practice and use if every day if necessary to make every relationship you have magnificent. You can use it on the same relationship as many times as you want. The more you can be grateful for the good things in your relationships, the faster every relationship in your life will miraculously change. Magical practice number 3. Magical relationships. Repeat steps 1 to 3 of magic practice number 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Read it your list. And the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. Choose 3 of your closest relationships and collect a photograph of each person. With the photo in front of you, write 5 things you are most grateful for about each person in your journal or on your computer. Begin with Begin each sentence with the magic words thank you, include their name and what you are specifically grateful for. Carry the 3 photographs with you today or put them in a place where you will see them often. Look at the photographs on at least 3 occasions. Speak to the person's face in the photographs and thank them by saying the magic words thank you and their name. Thank you, Helly. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words thank you for the best things that happened during the day. Yeah, thank you so much, Deepa. Thank you for the first time reading. Thank So, you, ma'am. अब आज की जो प्रैक्टिस है, जो कल सरिता जी ने अपना एक्सपीरियंस बताया था, वो इसी प्रैक्टिस के बारे में बताया था। दैट इसमें 3 लोग हमको जो क्लोज रिलेशनशिप्स है, देखो क्योंकि अभी अभी बुक शुरू हुई है ना, तो अभी हम ब्रोकन रिलेशनशिप पे काम नहीं करेंगे या एस्ट्रेंज रिलेशनशिप्स पे काम नहीं करेंगे, जहां रिश्ता टूट ही गया है या जहां पे बहुत ज्यादा कड़वाहट है, ये वो रिलेशनशिप्स नहीं है। ये 3 क्लोज हैं जिनसे ऑलरेडी अच्छा है लेकिन वो स्पार्क मिसिंग है, यू नो, लाइक मे बी यू आपकी फ्रेंड है, आप लोग बातें तो करते हो, पहले बड़े मजे करते थे, घूमते फिरते थे, बट अब वो कॉर्डियल रिलेशनशिप हो गया है, मतलब कॉर्डियल है, इट्स नॉट दैट वो खराब हो गया, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, ऐसा नहीं है, कॉर्डियल है, लेकिन आपको दोबारा से उसमें स्पार्क लेके आना है ना। तो ऐसे 3 लोग चूज करने, हो सकता है आपके ऑफिस में कोई कोलीग हो, पहले आप लोग बहुत अच्छे दोस्त थे, अभी भी बातें करते हो, साथ खाना खाते हो, बट वो बात नहीं है, ठीक है, तो उनके साथ आप कर सकते हो। अब आपका बॉस है ऑफिस में कोई, आप उसके साथ कर सकते हो, इट कुड बी अ फीमेल और अ मेल, सम नेबर जिसके साथ आप पहले बहुत अच्छा रिश्ता था आपका, लेकिन कुछ टाइम से आप बस बातें करते हो, मतलब वो वाली बात नहीं है पहले वाली। सो ऐसे वाले रिलेशनशिप्स लेने हैं जो ऑलरेडी, मतलब उनसे रोज आप मिलते जुलते रहते हो, और यू नो इट कुड बी योर सिस्टर, इट कुड बी योर ब्रदर, मे बी कभी कुछ ऐसी बात हो गई तो बहुत ज्यादा बात नहीं होती है, बट यू वांट टू ब्रिंग मैजिक इनटू दैट रिलेशनशिप, है ना। सो दैट उन लोगों के लिए करना है, क्योंकि अभी बुक की बिगनिंग है, तो अभी हमें बहुत ज्यादा टफ असाइनमेंट्स नहीं मिलेंगे, अभी ये इजी से शुरू होती है,
और उसके बाद धीरे धीरे बाय द टाइम हम 28 चैप्टर्स तक जाते हैं, तब तक इसमें असाइनमेंट्स थोड़े डिफिकल्ट टू डू हो जाते हैं, जिसमें हमको एक्चुअली अपना ईगो और वो सारी चीजें चली जाती है आफ्टर सम टाइम, एंड द वे वी ब्लेम अदर्स फॉर एवरी स्मॉल थिंग, ऑल दैट गोज अवे, है ना। सो ये वाली प्रैक्टिस में इतने सालों से करते करते मैंने ये देखा है दैट लाइक दूसरों के साथ रिलेशनशिप्स भी इसलिए अच्छी होती है बिकॉज यू स्टार्ट लविंग योरसेल्फ सो मच, you will always notice this for everyone, all of us जो हम ये किताब बहुत टाइम से कर रहे हैं, हमारे साथ रिश्ता अलग हो गया है, जिसके कारण कहते हैं ना कि when you start loving yourself the whole world loves you, till the time you are at cross purposes with yourself, मतलब आपकी खुद अपने साथ ही conflicting relationship है, आप अपने आप की भी इज्जत नहीं करते हो, प्यार नहीं करते हो, तो लोग भी नहीं करेंगे, क्योंकि वो सब आपके मिरर इमेज होते हैं, है ना। सो इस ये वाले प्रैक्टिसेस करके what I have seen is that we change so majorly as a person and we start falling in love with ourselves. As a result of that, we don't see others with the light of complain or whatever. सो ये है बस बेसिकली आज का 3 हमको क्लोज फोटोग्राफ्स लेनी है अपने क्लोज लोगों की, और उनके, और तीनों का सिंगल, ये सुबह की प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं है कि इसको आप दोपहर को कर लो, ये अभी ही करना पड़ेगा। इनफैक्ट मैं अपनी वाली प्रैक्टिस आज कर चुकी हूँ, सुबह मैंने कहा ब्रह्म मुहूर्त में ही करके छोड़ दो, बिकॉज इसमें अब आपको पूरे दिन, मतलब अगर आप घर में हो, आज संडे है, मोस्टली मोस्ट ऑफ अस आर गोइंग टू बी होम, तो आप कितनी भी बार वो फोटो निकाल के देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है कि आप जितनी बार भी वो फोटो को सामने रखो या मन में रखो कि आज ये वाली प्रैक्टिस है। तो सुबह जब आपने पॉइंट्स लिख लिए, 5 पॉइंट्स लिखने का तरीका ये है, थैंक यू सो एंड सो, सपोज आप उस पर्सन को बिट्टू बोलते हो, उसका एक्चुअली नाम राहुल है, लेकिन आपने निकनेम में आप शुरू से उसको बिट्टू बोलते हो, ठीक है, तो आपको थैंक यू बिट्टू ही लिखना है, उसका फॉर्मल नेम नहीं लिखना है। जिस तरह से आप एड्रेस, सपोज आप अपने भाई के साथ कर रहे हो, तो अब भाई का फॉर्मल नेम हो सकता है मनोज है, लेकिन आप उसको कुछ भी बोल सकते हो, लाइक आप सोनू बोलते हो उसको प्यार से, या जो भी बोलते हो, तो आपको थैंक यू सोनू ही लिखना है, ठीक है, जो आप एड्रेस करते हो। तो थैंक यू सोनू फॉर गिविंग मी सच अ ब्यूटीफुल सरप्राइज ऑन माय 20th birthday. Thank you, Sonu, for supporting me when I had to choose a subject to go to the college. Thank you, Sonu, for taking me to the best places to eat. Thank you, Sonu, for Xeroxing all my work, when I needed them, and I needed a lot of, like Xerox sheets for my college work. So, इस तरह से, हाँ, आप अगर आपको फीलिंग नहीं आ रही है, मतलब ऐसे उसने आपके लिए कुछ नहीं किया और आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ किया नहीं, तो उनकी क्वालिटीज के बारे में भी आप लिख सकते हो। That thank you Sonu that you have such good communication skills. Thank you Sonu कि आप अपने फ्रेंड्स के लिए इतने अच्छे दोस्त हो, and you have always helped them जब भी उनको जरूरत थी। Thank you Sonu that आपको इतना अच्छा केक बेक करने का शौक है, and like we all love it. तो उनकी क्वालिटीज जो है उनके बारे में भी आप लिख सकते हो, जरूरी नहीं है कि उन्होंने आपके लिए क्या किया आपको वही लिखना है, ठीक है। और दिन में अगर आप घर में हो तो जितने भी बार फोटो निकाल के आप देख सकते हो, और उनको देख के, फोटो को देख के बोलना है, लुक एट देयर फेस एंड से थैंक यू सोनू, लाइक दैट, ठीक है। और अगर आप बाहर कहीं हो तो दिन में 3 बार, और मतलब सुबह असाइनमेंट किया, उसके अलावा 3 बार और वो फोटो निकाल के थैंक यू उनको देख के ही बोलना है, ये प्रैक्टिस है। सो इट सेज दैट इसकी वजह से आप देखना कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आने लग जाएगा। अब एक दिन में तो आता नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि उस रिलेशनशिप में आपको बहुत ही ज्यादा मैजिक लाने की जरूरत है, तो ये वाली प्रैक्टिस आप रोज भी कर सकते हो। सो इट इज नॉट दैट यू हैव टू डू इट टुडे ओनली, लेकिन अगर नहीं भी रोज करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज इट इज द फ्रीक्वेंसी एंड द वाइब्रेशन जिससे हमारी जिंदगी चेंज होती है। तो वो तो कल वाली प्रैक्टिस भी आई जाएगी ना, कुछ ना कुछ, कल भी तो हेल्थ की प्रैक्टिस है, तो ग्रेटिट्यूड तो हमको कल भी करना पड़ेगा। सो यूनिवर्स डजंट अंडरस्टैंड दैट किस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, डेफिनेटली फोकस्ड हमेशा मैटर करता है, बट आपकी फ्रीक्वेंसी जो एलिवेट होगी, जो वाइब्रेशंस आपकी जो एमिट करेंगे, उसकी वजह से जिंदगी बदलती है। सो वो हम लगातार करते रहेंगे, वो हमने कल भी किया, सुबह किया, शाम को किया, और हमारा पैटर्न ये धीरे धीरे बनता जा रहा है दैट वी आर इन द वर्ल्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड मोस्ट ऑफ द टाइम। उसकी वजह से हमारी फ्रीक्वेंसी हमेशा हाई रहती है ना। और बिकॉज ऑफ दैट यू सी द चेंजेस एंड द डिफरेंस हैपनिंग इन योर लाइफ, इन एवरी एस्पेक्ट यू विल सी।
आप किसी भी चीज के लिए, आप किसी एक चीज के लिए, जैसे आप रिलेशनशिप के लिए कर रहे हो, इसकी वजह से बाकी चीजें भी आपके आंसर होती जाएंगी, मतलब बाकी प्रेयर्स भी जो है वो भी आंसर होती जाएंगी। तो ये जरूरी नहीं होता कि अगर आपने यही किया है तो यही चीज होगी, बाकी की चीजें गड़बड़ होती जाएंगी। इट इज नॉट लाइक दैट। इट इज यूनिवर्स अंडरस्टैंड्स द लैंग्वेज ऑफ फ्रीक्वेंसीज। यूनिवर्स हमसे फ्रीक्वेंसी में बात करता है। सो यूनिवर्स की प्रॉस्पेरस फ्रीक्वेंसी होती है, हमको एलिवेट करना होता है अपने आप को, और हमको जोन में रखना होता है जिसमें हम हमेशा हैप्पी हों, ठीक है, एंड इन लव विद आवरसेल्व्स हो। ये बहुत जरूरी है। सो ये सारे प्रैक्टिसेस कर करके यही एक चीज चेंज होती है, तो हमारा हमारे साथ में रिश्ता चेंज हो जाता है, बिकॉज यू आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन योर लाइफ, and then you see outwardly the difference starts coming, है ना। So we'll just go through any कुछ ऐसा point हो specific। तो प्रैक्टिस में हमारा यही है that तीनों, और प्रैक्टिस समझ लेना, आप दोबारा भी पढ़ सकते हो अगर आपको ठीक से समझ नहीं आया है। So it is, तो इसमें है that जितनी ज्यादा आप एनर्जी डालोगे टू फाइंड ग्रेटफुल थिंग्स अबाउट इन अ पर्सन, उतना ही आप देखोगे कि ग्रैटिट्यूड अपना ब्रेथ टेकिंग मैजिक परफॉर्म करता है, और आप देखोगे दैट रिलेशनशिप इज स्ट्रॉन्ग, मोर फुलफिलिंग एंड मोर एनरिचिंग देन यू एवर थॉट दे कुड बी। वो पहले जैसा बहुत अच्छा रिश्ता था, पहले जैसा करना चाहते हो, ठीक है, लेकिन ये पहले से कहीं और ज्यादा बेटर हो जाता है। सो दिस इज द होल एसेंस ऑफ डूइंग दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस, है ना। And that's about it, and we will see the miracle perform, you know, like in that relationship you will see miracle happening in that particular relationship. So that is it। तो सुबह इसमें मैजिकल रिलेशनशिप्स में जो दिन को प्रैक्टिस करनी है वो तो यही है, दिन को करनी है, दिन सुबह सुबह करनी पड़ेगी, अब भी करनी पड़ेगी सेशन के बाद, ठीक है। तो उसमें, और तीनों का सिंगल शॉट में करना है, ऐसे नहीं कि एक फोटो लेके अभी लिख लिया, उसके 5 ग्रैटिट्यूड, दूसरे वाले का 1 घंटे के बाद कर रहे हैं जब टाइम मिल रहा है, ऐसे नहीं, तीनों का इकट्ठे करना है। कोई बात नहीं, अगर आपको अभी 8 बजे तक का टाइम नहीं मिलता, यू कैन डू इट एट 9 o'clock और 9:30, बट यू शुड हैव मोर टाइम ऑन हैंड, है ना, कि तीनों का आप इकट्ठे कर पाओ। तो पहले पहली वाली फोटो निकालेंगे, उसके बारे में आप सोचेंगे कि उसके बारे में क्या अच्छी क्वालिटीज है, उसने क्या आपके लिए किया, जो भी है। उसके बाद फोटो को सामने रख के 5 पॉइंट इस लैंग्वेज में, थैंक यू सो एंड सो फॉर दिस दिस व्हाटएवर, और फिर दूसरी फोटो उठाएंगे, फिर दूसरे का 5 लिखेंगे उसी सिंगल शॉट में, फिर तीसरी फोटो उठाएंगे, तीसरे का लिखेंगे 5 पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद दिन में कितनी भी बार, या मिनिमम 3 बार हमको वो फोटो सामने रखनी है, अगेन तीनों की साथ में रखनी होगी। साथ में मतलब ऐसे नहीं कि तीनों की साथ में एक एक करके, बट इन अ सिंगल स्ट्रेच ऑफ टाइम। पहली फोटो निकाल के थैंक यू राहुल, सेकेंड फोटो निकाल के थैंक यू सोनू, थर्ड फोटो निकाल के थैंक यू जो भी है, ठीक है, ये एक बार, फिर दोपहर के टाइम कभी, फिर से शाम को। सो फोटो निकाल के, जब फोटो निकालनी है तो फिर आपको 5 ग्रैटिट्यूड सोचने की जरूरत नहीं है, बस फिर तब थैंक यू सो एंड सो बोलना है, लिखने का काम सिर्फ सुबह का है, ठीक है। सो ये वाली प्रैक्टिस, और ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस होती है, जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हमें पता नहीं लगेगा कि कितना इसमें पावर होती है। और मॉर्निंग और नाइट का सेम विल कंटिन्यू। मॉर्निंग में वी स्टार्ट अ डे बाय राइटिंग 10 ब्लेसिंग्स, काउंट माय ब्लेसिंग्स होती हैं उसमें, दैट आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई हैव फूड ऑन माय प्लेट एवरी डे, यू नो, लाइक इस तरह से 10 ब्लेसिंग्स करके उसको रीड करके 3 बार थैंक यू करना है। रात को मैजिक रॉक प्रैक्टिस है, यू होल्ड दैट स्टोन इन योर हैंड, जो आपका ग्रेटिट्यूड रॉक है, और आपको पूरे दिन भर की अच्छी चीजें सोचनी है और उसमें से बेस्ट चीज निकाल के उसको थैंक यू करके सोना है। एंड ये दोपहर की प्रैक्टिस है। सो ये इस तरह से करेंगे तभी ये सबकॉन्शियस माइंड में पैटर्न बनेगा ग्रैटिट्यूड का, और आप देखोगे आपकी किस्मत बदल गई लाइक यू नो, लाइक अ पफ ऑफ स्मोक, थिंग्स स्टार्ट गोइंग अवे, जो नेगेटिव चीजें थी वो नहीं आएंगी। इस प्रैक्टिस से ये भी एक चीज मैंने देखी है इन ऑल दीज इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, दैट जो लोग भी टॉक्सिक लोग होते हैं या जिनकी वजह से आपकी ग्रोथ नहीं हो पा रही है ना, वो आपकी जिंदगी से धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। मतलब उनके फोन आने बंद हो जाएंगे, वो आपसे बात नहीं, मतलब कर भी पाएंगे तो बात नहीं करेंगे, या जब कोई ओकेजन होगा तो वो सिटी में नहीं होंगे, मतलब आप बुलाओगे उनको इनवाइट करने के लिए तो वो सिटी में नहीं होंगे, तो वो आपके कांटेक्ट में ही नहीं आ पाएंगे। मतलब somehow दैट इज द गेम ऑफ द यूनिवर्स, उसमें हम कुछ नहीं करते, हम बहुत दिल से उनको अपने बर्थडे पे भी बुलाते हैं, या जो भी है, कोई पार्टी हो रही है घर में या कोई ओकेजन है, सो यू विल कॉल देम, बट वो आ ही नहीं पाएंगे बिकॉज ऑफ सम जेन्युइन सर्कमस्टांसेस,
यूनिवर्स डजंट ब्रिंग देम क्लोज टू यू, बिकॉज वो अब आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं करते। जब तक कोई आपकी फ्रीक्वेंसी को मैच नहीं करता ना, वो आपकी जिंदगी में नहीं आएगा। अपने आप अगर कोई कम टाइम आप किसी के साथ बिता पा रहे हो ना, उसकी ओनरशिप ले लो। दैट इज बिकॉज you know that it is because of us, because when you are at the frequency of 700 megahertz, you will not come in contact with people who are 250 and 300 megahertz. नहीं हो पाएगा आपसे, ठीक है, वो आएंगे ही नहीं। और ये सारा यूनिवर्स का खेल होता है। दिस इज नॉट दैट वी आर डूइंग एनीथिंग, वी बिकम बेटर एज अ पर्सन रादर, यू नो। तो हमारा उनके साथ बहुत अच्छा रिश्ता होता है, हमारे मन में कोई एंग्स्ट नहीं है, कोई ब्लैक स्पॉट नहीं है उनके लिए, बट उनकी क्योंकि फ्रीक्वेंसी हमसे बहुत डिस्टेंस पे है, तो वो हमारी जिंदगी में आएंगे ही नहीं। वो अपने आप या तो चले जाएंगे या कुछ ऐसा हो जाएगा दैट यू नो लाइक दे विल जस्ट नॉट बी देयर इन योर एनवायरमेंट बिकॉज ऑफ वट एवर रीजंस. And that is how universal forces, you know, like manage us. So there is that force always governing us, which is bringing the best in us and in everybody else also because of us, you know. So this is the kind of life, and this is how the forces play their game, their bit. So but then yes, with these practices आपकी जिंदगी हायर एंड हायर एंड हायर होती जाएगी। और वो छोटी मोटी चीजें जो जिंदगी में होती रहती है ना, रोज के पचड़े जो होते हैं, वो मैटर भी नहीं करेंगे अब। इट इज ऑलमोस्ट लाइक कि जब आप लिफ्ट से 125th फ्लोर पे चले जाते हो, जब आप बुर्ज खलीफा पे खड़े हुए होते हो, है ना, 124th एंड 125th फ्लोर पे ही लोग जा सकते हैं ना। सो वहां पे जब आप होते हो तो आपको नीचे सारी चीजें जो बड़ी बड़ी एमआर की बिल्डिंग्स हैं, जो नीचे से बहुत ही मैजेस्टिक और बड़ी बड़ी लगती है ग्राउंड फ्लोर से, बुर्ज खलीफा से वो भी ऐसे टॉयज की तरह दिखती हैं, यू नो लाइक जो बड़ी बड़ी सी बिल्डिंग्स हैं जिसमें 50 एंड 60 एंड 70 एंड 80 फ्लोर्स हैं, वो भी ऐसे छोटे छोटे से दिखते हैं जब बुर्ज खलीफा पे आप खड़े रहते हो, ऐसे टॉयज की तरह नीचे रखे हुए। कार्स दिखती हैं जैसे कोई एंड्स हो। सो हमारी लाइफ ऐसी हो जाती है दैट वी आर ऑलवेज इन दैट एलिवेटेड लाइफ स्टेट और लाइफ कंडीशन। सो जो छोटे छोटे पचड़े प्रॉब्लम्स ये मैटर ही नहीं करती हैं, बिकॉज आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी हाई है और आप बहुत ही क्रिएटिव मोड में होते हो। जब आप हाई लाइफ स्टेट में होते हो, ग्रेटिट्यूड में होते हो, तो वो एनर्जी, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा होती है कि ये छोटी छोटी चीजें ना ये एंड्स की तरह नजर आएंगी। क्योंकि अभी तो शुरू में जब हम ये प्रैक्टिस शुरू करते हैं तो हम ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं, तो हमको सब बहुत बड़ा लगता है, वाओ 50 फ्लोर्स की बिल्डिंग है, इट इज सो टॉल एंड दिस एंड दैट। बट व्हेन यू आर ऑन द 200th फ्लोर, नथिंग मैटर्स, एवरीथिंग लुक्स वेरी स्मॉल। ओके, सो आपका व्यू ही चेंज हो जाता है, आपका हार्ट ही, जिस तरह से आप सोचते हो, समझते हो चीजें, यू नो, जिस तरह से क्रिएटिव इंटेलिजेंस आपके लाइफ में वर्क करती है, वो बहुत डिफरेंट होता है। So that is what, so you'll be on the roll, you know, like this journey of gratitude, you know, it gives us a kick and it keeps us on the roll. It is that beautiful. So just enjoy this journey and enjoy doing these assignments. करने में बड़ा मजा आता है, और इसकी वजह से जो चेंजेस होते हैं ना एनर्जी लेवल पे, क्वांटम लेवल पे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। बट आज की टीचिंग से, जो ये वाली टीचिंग्स हैं जो रॉन्डा बर्न ने हमको दिए चैप्टर नंबर 3 से, इसमें एक पॉइंट पकड़ो, फॉर एवरी वन कंप्लेन देयर हैज टू बी 10 ब्लेसिंग्स, और ये लिखना शुरू कर दो, तभी हम सीखेंगे, है ना। नहीं तो फिर हमें इनएडवर्टेंटली मुंह से कुछ ना कुछ निकलता जाता है, बिकॉज इसमें ये भी रॉन्डा बर्न ने समझाया है दैट वर्ड्स आर वेरी वेरी पावरफुल। Okay, so use them very wisely, because any word that you have spoken, हमने क्यों सुबह 5 से 7 मिनट्स के हमने affirmations किए, है ना, सारे वर्ड्स लगातार 7 मिनट तक we were in that zone जहाँ पे हमारी बहुत अच्छी सेल्फ टॉक चल रही थी। कई लोग मन में कर रहे होगे, कई लोग आप आउट लाउड बोल के कर रहे होगे, बट हमारी बहुत अच्छी सेल्फ टॉक चल रही थी। उसकी वजह से आप देखना पूरे दिन का वाइब्रेशन चेंज हो जाएगा, बिकॉज इट वॉज अर्ली इन द मॉर्निंग दैट वी हैड डन, एंड यू विल सी दैट 7 मिनट्स में बहुत पावर होती है। अगर आप आस्क एंड इट इज गिवन पढ़ोगे, वो वाली बुक ऑडियो बुक के फॉर्म में है यूट्यूब पे, और है कुछ 3, 3.5, 4 घंटे की है वो ऑडियो बुक। आराम से उसको सोच के समझ के उसको सुनना, कभी जब आप वॉक करने जा रहे हो, दैट इज द बेस्ट टाइम दैट यू कैन लिसन टू दैट बुक, बिकॉज बहुत अच्छे जोन में होते हैं, है ना, तब आप ये बुक सुन सकते हो। एंड इट इज रिटन बाय अब्राहम हिक्स। तो उसमें आपको 7 मिनट्स का पता लगेगा कि 7 मिनट्स में सेल्यूलर लेवल पे ह्यूज डिफरेंस आ जाता है, अगर आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक या मतलब इस तरह की कोई बात करते हो। बिकॉज सबकॉन्शियस ब्रेन को तो पता नहीं है, हमने जैसे आज बोला आई एम वेरी हेल्दी एंड एनर्जेटिक, सबकॉन्शियस को सही गलत थोड़ी पता है। हो सकता है आज आपकी हेल्थ बहुत अच्छी नहीं हो, लेकिन आपकी सेल्फ टॉक है आई एम हेल्दी एंड एनर्जेटिक, है ना। सो वो सबकॉन्शियस माइंड एब्जॉर्ब करेगा, क्योंकि उसको ट्रू फॉल्स नहीं पता होता।
उसको ये पता होता है बोला क्या जा रहा है, क्योंकि वर्ड्स आर वेरी पावरफुल. सो इनफैक्ट अभी मैं एक वर्ड्स आर वेरी पावरफुल नाम की एक किताब ही पढ़ रही हूँ. सो लेट मी जस्ट कंप्लीट इट, देन आई कैन गिव यू सम की पॉइंट्स फ्रॉम दैट. मतलब 1 हफ्ता हो गया है, somehow ऐसा हो रहा है कि वो टाइम इतना उस हिसाब से नहीं मिला कि किताब खत्म हो जाए. ठीक है, बट इतनी पावरफुल बुक है, इट्स रियली लवली. एंड आई विल शेयर द की पॉइंट्स विद यू सो दैट वी कैन ऑलवेज रिमेंबर दैट, क्योंकि बुक पढ़ के फिर नहीं तो हम भूल जाते हैं. सो आई डोंट डू दैट. मैं बुक पढ़ने के पहले पहले इंटेंशन सेट कर लेती हूँ दैट आई एम एबल टू एब्सॉर्ब ऑल द की इंफॉर्मेशन and knowledge and try and apply them in my life, and share. I do nothing, I don't gain any knowledge to not, I'm just a channel. It comes through me, circulates out, circulates in and circulates out. It's like that. So let me read that. But ये बात ध्यान रखना, वो पूरी किताब अभी तो मैंने उसके शायद 3 चैप्टर्स ही पढ़े. So उसमें सब में ये है, the words that you utter, every word has got a frequency, and the moment you have spoken it, it starts to exert its influence. Okay, so इसलिए choice of words becomes very important. तो हमको नहीं बोलना है, like अपने बच्चों को कि पढ़ लो नहीं तो फेल हो जाओगे, things like that. ये affirmations होती हैं और ये declaration होती है. हर sentence जो हम इस तरह का फालतू का बोलते हैं, that's a declaration. ठीक है, ये कर लो नहीं तो तबीयत खराब हो जाएगी. सो यू कैन स्टिल से ये खाना खाओ, इससे हेल्दी हो जाते हैं. ठीक है, ये तरीका होता है बोलने का कि ये सैलेड अच्छे से खा लो, या हैव सम ग्रीन वेजिटेबल. अगर सपोज आपके बच्चे आर नॉट ईटिंग द ग्रीन वेजिटेबल्स एंड दे आर ओनली ईटिंग पास्ता, सो यू कैन टेल देम दैट हैव सम ग्रीन वेजिटेबल्स आल्सो. इससे हेल्थ बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, हेल्थ विल बिकम बेटर. इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ये खाओ नहीं तो बीमार पड़ जाओगे, वीकनेस हो जाएगी, बाल झड़ जाएंगे, ऐसे नहीं बोलना है. आपको उनको बोलना है कि एग्जाम आ रहे हैं, पढ़ाई कर लो नहीं तो नंबर कम आएंगे, ऐसे नहीं बोलना है. ठीक है, वो डेक्लेरेशन होती है यूनिवर्स को जो आपने दे दिया है ऑलरेडी, और उनके नंबर कम आएंगे अब. ठीक है, सो इंस्टेड यू हैव टू से पढ़ लो बिकॉज यू आर रियली अमेजिंग, और इतनी आप में नॉलेज है और इतना वो है, इंटेलिजेंस है. सो यू वांट टू कम इन द फर्स्ट 5, नो, लाइक दैट. सो दिस यू कैन टेल देम. सो इसीलिए हमको वर्ड्स एंड सेंटेंसेस की रिफ्रेमिंग करनी पड़ेगी. हम नेगेटिव चीजों के बारे में बात नहीं करेंगे, तो ये ध्यान रखना है. और वर्ड्स का इसमें भी, रिलेशनशिप्स में भी यही बताया हुआ है. अभी मतलब आई थिंक अब फ्यू पैराग्राफ्स अप हियर, आज वाले चैप्टर में था that words are very very powerful and they have a lot of very high frequency. So इसलिए think twice about speaking anything which is negative. Now that words would not necessarily be what you speak from your mouth. It could also be the inner talking that you are doing with yourself. मतलब आपके मन में भी अगर आप कुछ ऐसे sentences अपने बारे में बोल रहे हो, उनको भी reframe करो और उनको देखो कि क्या आपको देखना है, ये नहीं तो फिर नहीं. बस simple as that. Okay, it has to be that. So yeah, we go to the second book, which is Power of the Subconscious Mind. और उसमें हम कुछ ऑल्टर के बारे में पढ़ रहे थे कि कोई ब्राइड थी, उनकी शादी होने वाली थी, और किस तरह ऑल्टर पे लेफ्ट एट द ऑल्टर, मतलब उसका होने वाला पति आया ही नहीं शादी के मौके पे, शादी करने के लिए. So it is about that experience. So yes, ma'am. Yeah, good morning, ma'am. Left at the altar. Some years ago, I visited a church to perform a marriage ceremony. The young man did not appear, and at the end of 2 hours, the bride-to-be shed a few tears and then said to me, I prayed for divine guidance. This might be the answer, for he never failed. That was her reaction, faith in God and all things good. She had no bitterness in her heart because, as she said, it must not have been right action because my prayer was for right action for both of us. Someone else having a similar experience would have gone into a tantrum, have had an emotional fit, required sedation, and perhaps needed hospitalization. Tune in with the infinite intelligence within your subconscious depths, trusting the answer in the same way that you trusted your mother when she held you in her arms. This is how you can acquire poise and mental and emotional health. Okay, so I'll just put it in Hindi for us. इसमें ये था कि ये क्योंकि डॉक्टर जोसेफ मर्फी जिन्होंने ये किताब लिखी है, ये पास्टर थे, ये चर्च में प्रीस्ट थे जो शादी की सेरेमनीज भी परफॉर्म करते हैं लोगों के लिए. तो इनके पास एक, मतलब ऑब्वियसली कपल की वेडिंग थी चर्च में,
तो वो लड़की तो आ गई थी, वो लड़का आया ही नहीं शादी करने के लिए। मतलब फिर 2 घंटे के बाद उस लड़की को पता लगा कि वो उससे शादी नहीं करना चाहता है, तो उसने ऑफ कोर्स लाइक ऑब्वियसली बुरा तो लगता ही है, तो वो रोई थोड़ी देर के लिए, शी वाज शेडिंग, उनके आंसू निकले, वो रो रही थी। उसके बाद उन्होंने डॉक्टर जोसेफ मर्फी को ये कहा कि ये हो सकता है यूनिवर्स की ही कॉल है, बिकॉज मैं हमेशा से यही प्रे कर रही थी एक डिवाइन गाइडेंस के लिए, और मैं चाहती थी कि मतलब जो भी सही है वो हो। मैं ये नहीं बोलती थी कभी कि जो हम दोनों के लिए सही है वो होना चाहिए। वो बार बार उनकी प्रेयर यही रहती थी दैट अगर ये हमारे लिए राइट एक्शन है तभी ये होना चाहिए, और राइट एक्शन दोनों के लिए होना चाहिए। तो अब यूनिवर्स ने उनकी बात सुन ली। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि जैसे बाइबल में लिखा हुआ है दैट जो आंसर आपकी जिंदगी के साथ हो रहा है वो एक्चुअली मतलब वो आपके लिए सही है। कभी कभी उस वक्त लगता है कि वो सही नहीं है, लेकिन बाद में जाके पता लगता है कि वाओ, मतलब यू वर प्रोटेक्टेड। कई बार आई हैव सीन सो मेनी पीपल कि उन लोग की शादी नहीं हो पाती है किसी वजह से, बाद में पता लगता है कि वो बंदा ऑलरेडी मैरिड था और उसके बच्चे भी हैं और वो अभी भी हैं, और वो किसी और से मतलब, और उसने इसको नहीं बताया था कि उसकी पहले शादी हो चुकी है। सो आई सीन सो मेनी सच केसेस यू नो वेयर बच जाती हैं लड़कियां इस तरह से फंसने के, मतलब दे डोंट यू नो लाइक दे आर नॉट ड्यूड बाय समवन एल्स, और वो प्रोटेक्ट हो जाती हैं इस तरह से। ये लड़की यही बोल रही थी, पहले तो वो बहुत रोई, उसके बाद उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो हुआ है अच्छे के लिए हुआ है, ये यूनिवर्स की कॉलिंग होगी, ये गॉड की कॉलिंग है, क्योंकि मैं यही सोच रही थी कि जो भी राइट एक्शन है वो हमारे साथ होना चाहिए, और राइट एक्शन हम दोनों के लिए होना चाहिए, लड़के के लिए लड़की के लिए। तो इस तरह से वो आया नहीं। तो वही डॉक्टर जोसेफ मर्फी बोलते हैं कि अगर कोई और लड़की होती उसकी जगह, अब वो तो समझती है क्योंकि वो इनकी वो थी, मतलब पहले से जानती थी डॉक्टर जोसेफ मर्फी को, तो उसको पता था कि क्या प्रेयर्स होनी चाहिए, है ना। लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर कोई और होता उस लड़की की जगह, तो वो तो बिल्कुल ही टैंट्रम्स थ्रो कर देता, ठीक है, उसको इमोशनल फिट्स पड़ने लग जाते, उसको सिडेशन की जरूरत पड़ती, मतलब उसको लिटरली उसको एंटी डिप्रेसेंट्स लेने पड़ते, और हो सकता है उसको हॉस्पिटलाइजेशन की भी जरूरत पड़ती अगर किसी और के साथ ऐसा होता तो, है ना। क्योंकि शादी की प्रिपरेशन में मतलब कितनी लंबी चलती हैं, और फिर इतने लोगों को इनवाइट करना, शादी के कार्ड छपते हैं, और फिर फाइनली शादी होती है, एंड इमेजिन उस दिन लड़का ही नहीं आया। और कोई होता तो कितनी बड़ा रूप में ये प्रॉब्लम हो सकती थी किसी के लिए, बट ये लड़की अपने दिमाग में इतनी सॉर्टेड थी, बिकॉज शी हैड अ वेरी फर्म बिलीफ इन द यूनिवर्स, इन द गॉड, दैट जो होगा सही होगा, और यही उसकी प्रेयर थी, है ना। जनरली रिलेशनशिप्स में हम ये नहीं देखते हैं, हम लोग आई थिंक थोड़े ग्रीडी होते हैं रिलेशनशिप्स में, या ये नहीं सोचते हैं कि जो भी डिवाइन एक्शन है वो होना चाहिए, दैट्स फ्लोइंग इनटू माय लाइफ एंड आई एम ऑलवेज गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड इन रिलेशनशिप्स, है ना। आई नॉर्मली सी गर्ल्स टू बी वेरी वेरी नीडी इन द रिलेशनशिप्स, मतलब वो बाकी सारे रिश्तों को खत्म कर देती हैं अपने एक बॉयफ्रेंड या किसी एक पर्सन के लिए, मतलब इतनी क्रेजी। समटाइम्स आई डोंट सी मेन बीइंग लाइक दैट, आई सी गर्ल्स बीइंग लाइक दैट। गर्ल्स आर वेरी नीडी इन द रिलेशनशिप, जिसके कारण उनका चलता ही नहीं है मतलब रिलेशनशिप ज्यादा, बिकॉज जैसे ही पता लगता है कि इतना नीडी और इतने क्लिंगी होते हैं, तो obviously nobody wants that, everybody wants space to breathe in their life, so that way। but then अगर स्पार्क रखना है रिलेशनशिप में, तो देयर इज ऑलवेज दैट डिवाइन गाइडेंस जो हम सबको सीख करने की जरूरत है, एंड दैट इज व्हाट इट इज। इसीलिए लिखा हुआ है ट्यून इन विद द इन्फिनिट इंटेलिजेंस, आपके सबकॉन्शियस माइंड से बात करने की कोशिश करो। वो तभी होगा जब हम मेडिटेट करेंगे, जब इनर वॉइस को सुनेंगे, तो आउटर नॉइस अपने आप शट हो जाती है, ठीक है। हम अपने साथ टाइम बिताते ही नहीं है, अपने साथ टाइम बिताना बहुत जरूरी होता है, एंड ट्रस्ट द आंसर, जो भी हो रहा है वो अच्छे के लिए हो रहा है ना। जैसे वो हरिवंश राय बच्चन की जो पोयम है ना, लाइक उन्होंने जो पोयम लिखी थी कि अनचाहा है तो अच्छा, मनचाहा है तो अच्छा है, अनचाहा है तो और भी अच्छा है, ठीक है। अगर अनचाहा भी है तो वो अच्छा ही है, क्योंकि वो एक्चुअली यूनिवर्स की कॉल है, और उसमें आपका बहुत बड़ा अच्छा कुछ छुपा हुआ है जो अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन वेरी सून यू विल बी एबल टू सी दैट, है ना। सो दिस इज इट सेज दैट यही एक तरीका है मेंटल और इमोशनल हेल्थ को एक्वायर करने का। हाँ जी। Yes, ma'am. It is wrong to marry. Sex is evil and I am evil. Some time ago, I talked to a young lady aged 22. She was taught that it was a sin to dance, to play cards, to swim, and to go out with men.
She was threatened by her mother, who told her she would burn eternally in hellfire if she disobeyed her will and her religious teachings. The girl wore a black dress and black stockings. She wore no rouge, lipstick, or any form of makeup because her mother said that these things were sinful. Her mother told her that all men were evil and that sex was of the devil and simply diabolic debauchery. This girl had no learned how to forgive herself as she was full of guilt. To forgive means to give for. She had to give up all these false beliefs for the truth of life and a new estimate of herself. When she went out with young men in the office where she worked, she had a deep sense of guilt and thought that God would punish her. Several eligible young men proposed to her, but she said to me, "It is wrong to marry. Sex is evil and I am evil." This was her conscience or early conditioning speaking. She came to me once weekly for about 10 weeks, and I taught her the workings of the conscious and subconscious mind as set forth in this book. This young girl gradually came to see that she had been completely brainwashed, mesmerized, and conditioned by an ignorant, superstitious, bigoted, and frustrated mother. She broke away completely from her family and started to live a wonderful life. At my suggestion, she dressed up and had her hair attended to. She took lessons in dancing from a man, and she also took driving lessons. She learned to swim, play cards, and had a number of dates. She began to love. She prayed for a divine companion by claiming that infinite spirit would attract to her a man who harmonized with her thoroughly. Eventually, this came to pass. As she left my office one evening, there was a man waiting to see me, and I casually introduced them. They are now married and harmonized with each other perfectly. सो ये भी एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस है डॉक्टर जोसेफ मर्फी की, क्लाइंट पेशेंट जो भी सो ये लड़की थी, अपनी माँ के साथ रहती थी। इसकी माँ बहुत ही ओल्ड फैशन थी, जो कहती थी कि बिल्कुल भी लाइक आदमियों के साथ उठना बैठना एक बहुत बड़ा इविल है, अगर तुम गई तो भगवान तुम्हें बहुत बड़ा पनिशमेंट देंगे। उसको उन्होंने बोला था कि किसी की तरफ देखना नहीं है, और कोई लड़की मतलब ऐसे डांस नहीं करती, आदमियों से बातें नहीं करती, कार्ड्स प्ले करना सिन है, स्विमिंग नहीं करना है, बाहर तो मतलब लड़कों के साथ जाना बिल्कुल ही अलाउड नहीं था, उसको लिपस्टिक लगाना, कलरफुल कपड़े पहनना भी बिल्कुल अलाउड नहीं था। इतनी ज्यादा पुरानी बिलीव्स की उनकी मदर थी। तो इस तरह से वो लड़की इसी तरह कंडीशन थी। और ऑफिस में जब वो जाती थी, तो जब सारे बॉयज एंड गर्ल्स ऐसे बाहर जा रहे थे कहीं पे कुछ, तो जितनी बार वो जाती थी उतनी बार वो गिल्ट में रहती थी कि अब भगवान मुझे बहुत बड़ा पनिशमेंट कुछ दे देंगे, क्योंकि मैंने अपनी माँ की बातें, और उसके दिमाग में ना ये सबकॉन्शियस में फिट हो गई थी कि ये करना ईविल है। तो उसके बाद ये 10 हफ्ते तक हर हफ्ते डॉक्टर जोसेफ मर्फी से मिलने गई, क्योंकि इस तरह उनकी लाइफ इतनी खराब होती जा रही थी। ठीक है। और फिर डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने इसको समझाया सारा, तो उन्होंने, डॉक्टर मर्फी ने ये बताया है कि उसके इतना स्ट्रॉन्ग पैटर्न उसके दिमाग में बने हुए थे कि मैं ये कोई भी काम ऐसा नहीं करूंगी। वो नॉर्मल लड़कियों के साथ में रहती थी, उसको था सब कुछ कि मतलब ये ईविल है, वो ईविल है, ये करने से पनिशमेंट मिलेगा और इस तरह से। तो डॉक्टर मर्फी ने जब उसको लाइक सारा कुछ बताया कि किस तरह से, उन्होंने लिखा है कि वॉट एवर आई हैव शेयर्ड इन दिस बुक, मैंने वो ही उसको बताया। डॉक्टर मर्फी ने लिखा हुआ है दैट इन दिस बुक जो भी कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न्स है, मैंने वो उसको समझाए। और वो उनके गाइडेंस में ही थी 10 हफ्ते तक, विच इज ऑलमोस्ट लाइक 2.5 महीना लगातार। और 2.5 महीना लगा उसको ये सारे पैटर्न्स को चेंज करने में। और फिर डॉक्टर मर्फी ने उसको सजेस्ट किया कि तुम अब अच्छे से ड्रेसअप हुआ करो,
और अपने बालों को थोड़ा स्टाइलिश करवाओ। उन्होंने बोला एट माई सजेशन शी ड्रेस्ड अप एंड हैड अ हेयर अटेंडेड टू, बाल ठीक करें। फिर डांसिंग क्लासेस ली उन्होंने मैन से, ठीक है, वो मैन को भी इसमें इटैलिक्स में लिखा हुआ है क्योंकि बहुत बड़ी चीज थी उसके लिए कि एक आदमी उसको डांस सिखा रहा था। एंड देन उसने ड्राइविंग सीखी, फिर उसने स्विमिंग सीखी, फिर उसने कार्ड्स प्ले करने शुरू किए, और फिर वो बहुत सारे डेट्स पे गई यंग मैन के साथ में, यू नो, और फिर उसको अपनी जिंदगी जीने का मजा आने लगा। फिर उसने कहा कि अब मुझे फिक्स एक कंपेनियन चाहिए, सो उसने शी स्टार्टेड प्रेइंग फॉर अ डिवाइन कंपेनियन by claiming to her subconscious mind that I should, that the man, you know, जो भी मेरे लिए बना है, जो मेरा divine companion है, that should get attracted to her। और इवेंचुअली थोड़ा टाइम होता गया, और एक दिन वो डॉक्टर जोसेफ मर्फी के ऑफिस में ही बैठी हुई थी, और जब वो वापस बाहर निकल रही थी तो एक दूसरा कोई आदमी एंटर हो रहा था, कोई यंग मैन एंटर हो रहा था। वो एक्चुअली डॉक्टर जोसेफ मर्फी का दूसरा ही क्लाइंट था, और डॉक्टर मर्फी ने उन दोनों को मिलवाया और उनको प्यार हुआ, और फिर फाइनली वो साथ में रहे। तो इस तरह से किस तरह से उसकी जिंदगी चेंज हुई। और ये सब जब हुआ जब उसने अपनी माँ का घर छोड़ दिया था, इसमें जो ये लिखा हुआ है that she broke away completely from her family and started to live a wonderful life। So because इतना ज्यादा रिजिडिटी थी कि ये खाओ मत, ये पहनो मत, ऐसे करो मत, इस तरह से। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज फॉरगिवनेस इज नेसेसरी फॉर हीलिंग। मतलब फॉरगिवनेस मीन्स माफ करना अपने आप को और लोगों को। हाँ जी। Forgiveness is necessary for healing. And when ye stand praying, forgive if ye have aught against any. Forgiveness of others is essential to mental peace and radiant health. You must forgive everyone who has ever hurt you if you want perfect health and happiness. Forgive yourself by getting your thoughts in harmony with divine law and order. You cannot really forgive yourself completely until you have forgiven others first. To refuse to forgive yourself is nothing more or less than spiritual pride or ignorance. In the psychosomatic field of medicine today, it is being constantly stressed that resentment, condemnation of others, remorse, and hostility are behind a host of maladies ranging from arthritis to cardiac disease. They point out that these sick people who were hurt, mistreated, deceived, or injured were full of resentment and hatred for those who hurt them. This caused inflamed and festering wounds in their subconscious minds. There is only one remedy. They have to cut out and discard their hurts, and the one and only sure way is by forgiveness. या सो ये चीजें बहुत आसान हो जाती हैं जब आपका सेल्फ लव में जब आप होते हो। मतलब नथिंग मैटर्स जो लोग कर रहे हैं, इतना ज्यादा, इतनी पावर किसी को देना कि मतलब दे कॉन्स्टेंटली हर्टिंग यू। सो यू वी ऑल हैव क्रिएटिव इंटेलिजेंस, व्हाई कांट वी क्रिएट द लाइफ। और वैसे भी देखो, सीधी सी बात है, जो कल तक हुआ उसकी वजह से अगर आप अपना प्रेजेंट और फ्यूचर को खराब कर रहे हो, सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इवन स्टडिंग दीज बुक्स देन ना। जो हो गया वो हो गया है, वो खत्म हो गया है, वो पास्ट है, हिस्ट्री, बायगॉन। वी डोंट हैव टू ब्रिंग इट टू आवर प्रेजेंट एंड द फ्यूचर एंड रूइन दैट। सो इसलिए माफ करना दूसरों को और अपने आप को एक बहुत जरूरी चीज होती है, ठीक है। उसी की वजह से हेल्थ हमारी अच्छी होगी। अगर हमारी हेल्थ, अगर हमको घुटनों में भी दर्द है ना, वो मेंटल टॉक के कारण होता है, टॉक्सिक मेंटल टॉक के कारण। जैसे ही मतलब हम जब भी टॉक्सिन्स पढ़ाते हैं तो हमेशा वो टॉक्सिन्स पढ़ाते हैं जो बाहर से आते हैं। बाहर से आते हैं मतलब फूड से भी कई बार टॉक्सिन्स आते हैं, वाटर से आते हैं, हवा से आते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा टॉक्सिन्स जो होता है ना, वो आपकी बॉडी खुद अपने दिमाग की सोच विचार से प्रोड्यूस करती है, और वो टॉक्सिन्स ही बीमारी करते हैं, जो इसके नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है। तो इसीलिए व्हेन यू हैव, आप ये सोचो ना, ठीक है ये हो गया सो हो गया, अभी आपको क्या चाहिए।
ठीक है, क्रिएटिव इंटेलिजेंस है हमारे पास, हमारा फ्रंटल कॉर्टेक्स ब्रेन सिर्फ क्रिएटिविटी के लिए है, अपनी लाइफ उस हिसाब से क्रिएट करना जैसे आप चाहते हो, बाय मेंटल इमेजेस, इमेजिनेशन एंड राइजिंग योर फ्रीक्वेंसी, ग्रेटिट्यूड में रह के। ठीक है, ग्रेटिट्यूड का भी बहुत पावरफुल चैप्टर डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने लिखा है इसी बुक में आगे जाके। सो इसलिए माफ करो यार, छोड़ दो, जिसने जो किया जैसे किया, सबका अपना कर्म उनके साथ ही रहता है ना। हमको किसी को पनिश करने की, और हम किसको पनिश करें? अपने आप को। किसी और की गलती, अगर किसी और ने हमारे साथ कुछ किया है, हम पनिश अपने आप को कर रहे हैं। बट वी आर सच बिग फूल समटाइम्स, नो, वी डोंट हैव टू बी, वी हैव टू वैल्यू आवरसेल्व्स एट मोस्ट। इसीलिए forgive yourself by getting your thoughts in harmony with divine law and order. You cannot really forgive yourself completely unless you have forgiven others first. तो सबको माफ कर दो, ठीक है। To refuse to forgive yourself is nothing more than, so if you really want, so इसमें नेक्स्ट वो लिखा हुआ है कि साइंस ने ये प्रूव किया है कि ये जो साइकोसोमैटिक फील्ड है, जो मतलब हमारी फीलिंग्स एंड इमोशंस का जो फील्ड है, इवन मेडिसिन, एलोपैथी में ये बोला जाता है, मेडिकल साइंस भी ये बोलती है कि सारी बीमारियां, रिजेंटमेंट मतलब आपका एंगर, आपका फ्रस्ट्रेशन, आपका जो ग्रज आपके लोगों के अगेंस्ट आपके मन में है कि उन्होंने ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, लोगों को क्रिटिसाइज करना, ठीक है, और हॉस्टिलिटी लोगों से रखना, उनसे नफरत करना, ये सारी रीजंस हैं अबाउट द होस्ट ऑफ मैलेडीज। कैसी कैसी मैलेडीज? हार्ट डिजीजेस, कैंसर, आर्थराइटिस, ये सारी चीजें ग्रजेस और रिजेंटमेंट की वजह से आती है, ठीक है। सो इसलिए अगर कोई भी सिकनेस अभी है तो उसका इलाज दिमाग में होता है। इसीलिए तो हम ग्रैटिट्यूड, इसीलिए तो हम मैजिक बुक का साथ नहीं छोड़ रहे, क्योंकि उसकी वजह से हमारी वैसे भी ग्रैटिट्यूड में रहेंगे तो हम हेट नहीं कर सकते किसी से, ठीक है। जब ग्रेटफुल रहेंगे तो हेट्रेड नहीं होगी, ग्रज नहीं होगी। अगर एक और चैप्टर आएगा जिसमें हम लोगों को माफ करेंगे आगे जाके, कि अगर हो भी गया है तो डजंट मैटर, हम फिर भी उसमें से ब्लेसिंग्स निकाल रहे हैं, है ना, हील योर रिलेशनशिप करके। अगर है भी, सपोज हमको बहुत दुख बेयर करना पड़ा अपनी फर्स्ट पार्ट ऑफ द लाइफ में या 60% ऑफ द लाइफ में, वो किस तरह से आप डिलीट कर सकते हो, उसको डिलीट करना पड़ेगा, वो एनर्जी चेंज करनी पड़ेगी हमको, ये बहुत जरूरी है, तभी हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, ठीक है। तो इसमें वो उन्होंने बताया है कि मोस्ट ऑफ द सिक पीपल, दैट जितने भी बीमार लोग थे, वो या तो किसी के थ्रू हर्ट हुए थे, या किसी ने मिसट्रीट किया था उनको, या किसी ने उनको चीट किया था, या किसी की वजह से वो इंजर हुए थे, इस वजह से उनको बीमारियां थी। सो ये सारी रिसर्चेस यही कहती हैं। तो लुइस हे ने तो वो किताब लिखी है ना, यू कैन हील योर बॉडी। तो यू कैन हील योर बॉडी में उन्होंने सारी वो इमोशंस बताए हैं कि कौन से इमोशन की वजह से कौन सी बीमारी होती है, बहुत क्लियरली उन्होंने बताया कि कौन से इमोशन से कौन सी बीमारी होती है, और उसमें सारी बीमारियों का इमोशनल रीजन है, ठीक है, सारी बीमारियों का इमोशनल रीजन है। सो दिस इज व्हाट इट इज। सो इसीलिए हमको अपने मतलब वी हैव टू लर्न टू फॉरगिव, एंड वहां से हम ग्रैटिट्यूड निकाले कि हमने उससे क्या सीखा, कि अब हम लोगों पे आराम से, अब हमें पता लग गया हमको कैसा पार्टनर चाहिए, अब हमें पता लग गया कि ये क्वालिटीज देखनी बहुत जरूरी है। देखो, हाथ बर्न होना जरूरी होता है कभी कभी, क्योंकि नहीं तो हम सीखते नहीं है ऐसे, है ना, बहुत आराम से सीखते नहीं है। सो इट इज ओके। देख, सो इसीलिए बॉडी में जैसे साइंटिफिक लेवल पे जैसे ही आपके नेगेटिव थॉट्स आते हैं ना, पूरी बॉडी का पीएच एसिडिक हो जाता है। जैसे अगर एंगर या वरी आया आपके दिमाग में, है ना, तो नॉर्मली ह्यूमन बॉडी का जो पीएच होता है ना, हमको पता है ना, अल्कलाइन एसिडिक 2 पीएच होता है, तो ह्यूमन बॉडी अल्कलाइन पीएच की होती है। और जैसे ही एंगर या वरी या फ्रस्ट्रेशन या किसी के लिए हेट्रेड या मतलब ऐसे कुछ आया, जैसे ही दिमाग में थॉट, पूरी बॉडी का पीएच एसिडिक हो जाता है, ठीक है। और एसिडिक पीएच में आपका दिल तेज तेज धड़केगा, आपके ऑर्गन्स ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको एसिडिटी और बहुत अजीब सा कुछ फीलिंग होने लग जाएगी, ठीक है, पेट में कुछ गुड़गुड़ होने लग जाता है, आपके मसल्स पूरे श्रिंक हो जाते हैं, कुछ चीजें दिख जाती है, महसूस हो जाती हैं, कुछ चीजें महसूस नहीं हो पाती हैं, लेकिन वो हो रही होती हैं बॉडी में, ठीक है। सो बहुत नेगेटिव फर्क पड़ता है। और जैसे जितने भी इन्फ्लेमेशन वाले, सारी इन्फ्लामेटरी डिजीजेस होती हैं, जितनी भी डिजीजेस होती है ना, हार्ट डिजीजेस, डायबिटीज, थायराइड प्रॉब्लम, आर्थराइटिस, इन सबको हम इन्फ्लामेटरी डिजीज बोलते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में इन्फ्लामेटरी केमिकल्स की मात्रा बढ़ जाती है।
तो जो इन्फ्लामेटरी केमिकल्स होते हैं, अगर आपने 5 मिनट भी एंगर या फिर फ्रस्ट्रेशन या इस तरह के मोड में रहे, रिजेंटमेंट में, किसी से रिजेंटमेंट है आपको या किसी का नेचर पसंद नहीं और पूरा किट चिड़चिड़ा बिहेवियर, वी विल सी दैट वो इन्फ्लामेटरी केमिकल्स आपकी बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाते हैं। अब डिजीज आएंगी ही आएंगी, और कई लोगों की जिंदगी में ये क्रॉनिक होता है, मतलब बहुत बहुत महीनों और सालों से उन लोगों को किसी से ग्रज रहती है, जिसके कारण उनका इन्फ्लेमेशन इतना बढ़ जाता है। अब क्या फर्क पड़ रहा है, अगले को तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो अपना मस्त होके घूम रहा है, किसके हाथ जल रहे हैं, आपके जल रहे हैं, है ना। तो हम क्यों ग्रज रखें, तो इसलिए हम सबको फॉरगिव कर देंगे। आई थिंक गुजरात में कोई सेरेमनी होती है ना, मिच्छामी दुक्कड़म और समथिंग लाइक दैट, जिसमें फॉरगिवनेस, है ना, दैट्स व्हाट वी कॉल इट। यस, मिच्छामी दुक्कड़म, है ना, मिच्छामी दुक्कड़म। तो वो होती है, वो दिन होता है जिसमें आप सिर्फ फॉरगिव करते हो। तो अब हमारा 365 डेज मिच्छामी दुक्कड़म होगा, ठीक है। हमको रोज किसी ने भी कुछ किया है, ब्लेस करो, उस पर्सन को ब्लेस करो, दैट फॉर हिज गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस एंड विजडम। देखो, अब गलत किया है तो विजडम, इसका मतलब उनके पास कम थी, तो आप उनको विजडम से ब्लेस कर दो, ठीक है। तो इस तरह से वी हैव टू ब्लेस एवरीबॉडी, जिसने भी जो भी किया। अगर कोई चीटिंग भी की है ना, अगर किसी ने बिजनेस में भी हमारे साथ, जब तक हम फॉरगिव नहीं करेंगे ना, तब तक हमारी फाइनेंशियल, मतलब वी विल नॉट गेट फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी, बिकॉज वो पैसा लेके भागा था और आप अभी भी उसको पकड़े जकड़े हुए हो, बुरी तरह से उस फीलिंग को जकड़े हुए हो, ठीक है, और वो आपके दिमाग से नहीं निकल रही है। सो यू हैव टू लेट गो, अपने हाथ खुले रखो पूरे, यू हैव टू लेट गो। जो भी चीज, ठीक है, जिसने भी जो भी किया है, सबका कर्मा उनके साथ रहेगा, बट हमारी लाइफ से ब्लेसिंग निकलेगी, क्योंकि हमारी लाइफ को 1000 गुना और ब्लेसिंग्स चाहिए उससे ज्यादा। तो जो एनर्जी आप छोड़ते हो, वो आपके पास घूम के वापस आती है, मल्टीप्लाई होके, ठीक है, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है। सो इसलिए बहुत जरूरी है ये सारी चीजें, कि हम किस तरह से, हमारा कंडक्ट क्या है, ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। एवरीथिंग एल्स इज अनइम्पॉर्टेंट, ओके। वी डोंट वांट टू फॉल सिक, वी डोंट वांट डिजीजेस। सो उसके लिए यही है, फॉरगिवनेस करो। फॉरगिवनेस मेडिटेशन होता है, बाय द वे, अगर आप लोगों को करना है, अगर आपको दुख, मतलब ऐसा वो कुछ है, तो affirmations भी आप कर सकते हो, that I forgive everybody and I bless them all with radiant happiness, health and goodwill, and I radiate peace and harmony from my life to everyone. अगर आपको नाम याद है तो उनके नाम लेके आप बोल सकते हो, that I radiate health, peace, harmony and goodwill to so and so, and I bless so and so person with happiness. इस तरह आप करके कर सकते हो। अगर आपको फॉरगिवनेस मेडिटेशन करना है तो आप YouTube पे जाके अपने एयरपॉड्स या जो भी लगा के आप, फॉरगिवनेस मेडिटेशन होता है 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट का, कोई सा भी आप उठा के कर सकते हो, एंड डू दैट एवरी डे। अगर आपके लाइफ में कोई ऐसा है और आप उसको क्लिंग करके पकड़े हुए हो कि उसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई और ये हो गया वो हो गया, इट्स नॉट वर्थ इट। किसी और की वजह से जिंदगी बर्बाद नहीं होती है। You have to own what's happening in your life. That's very important, because you are the creators and we are creating all the time. आप अपना next moment भी इस वक्त create कर रहे हो अपनी सोच से, okay, और अपने word से, और आपकी जिंदगी आगे वाली जो है वो भी आप ही क्रिएट कर रहे हो अपने प्रेजेंट से। जैसे एकार्ट टॉली पावर ऑफ नाउ बुक में बोलते हैं ना, दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोमेंट इन योर लाइफ इज राइट नाउ एंड द प्लेस इज राइट हियर एंड राइट नाउ, एंड दैट गोज फॉर एवरीथिंग। आपको वॉक करना शुरू करना है, वो भी राइट नाउ एंड राइट हियर, आज से करना है, बिकॉज टुमारो नेवर कम्स, ठीक है। अगर फॉरगिवनेस करनी है, ये आज से करनी है, ये कल से मैं ये करूंगी नहीं, आज कर सकते हो। हाँ, वक्त कम बिता सकते हो आज, क्योंकि आज बहुत व्यस्त दिन है आपका, बहुत ज्यादा बिजी हो, तो कम टाइम दे दो, लेकिन करना आज से ही है। So everything is what, because in this moment you're creating your next moment. So every next moment is getting created right now. Okay, so now is the only thing that you have in your hand. कल तो बीत चुका है, जो अभी इस वक्त के पहले का, अगर 7:04 हो रहे हैं तो इसके पहले का टाइम बीत चुका है, 7:02 चला गया, वो कभी वापस नहीं आएगा आपकी जिंदगी में, ठीक है। और जो फ्यूचर है वो भी आया भी नहीं है, वो आपके थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शन से, आपके इमोशनल हेल्थ से वो करेंटली अभी क्रिएट हो रहा है, कल कैसा होगा। तो इसीलिए एस्ट्रोलॉजी में भी जो लिखा होता है, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स में, जो आप बचपन में जब पैदा हुए थे उसके दूसरे दिन पे थे, उस दिन आपका एस्ट्रोलॉजी चार्ट बना था, उसके बाद आपने कितने थॉट्स, वर्ड्स, एक्शंस, कितने कर्मास किए हैं, नहीं किए हैं। सो यू कैंट बेसिस दैट, और उसके बारे में उसको दिमाग में पकड़ के बैठ जाओ, मेरे तो एस्ट्रोलॉजी में लिखा था, मेरा ये होने वाला है। कोई जरूरत नहीं है, वो सब फालतू की चीजें होती है, ठीक है। जो फालतू के टोटके टोने, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, ये सब होता रहता है।
ठीक है, उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। मैंने तो ये हार्डवेयर रियलाइज किया। मैं हमेशा अपने हाथ में नजरिया पहनती थी क्योंकि मुझे किसी ने बताया था कि मतलब देयर वाज अ फेज जिसमें मैं बार बार बीमार बीमार पड़ रही थी या कुछ हो रही थी। तो मेरी कुलीग ने बोला कि चलो नीचे एक ज्वेलरी स्टोर है, वहां से आप एक नजरिया खरीद लो विद अ कैट्स आई। तो मैं ऐसे कोई बड़ा मुझे बोलता है तो मैं ऐसे आर्ग्यू करती नहीं हूँ। और फिर नजरिया हमने शुरू से, मैं मुझे यही लग रहा था कि पहनने से क्या उसका, हाउ डज इट मैटर, लाइक पहन लेती हूँ। सो उसके बाद लंच ब्रेक में हम लोग हमारे मॉल में ऑफिस है तो हम सेकंड फ्लोर पे जाके ज्वेलरी स्टोर, वहां से एक नजरिया मैंने खरीद लिया एंड आई पेड हिम एंड सिंस देन आई हैव बीन वेयरिंग इट। और नजरिया पहनने में क्या, हम बच्चों को भी तो पहनाते हैं। तो मैंने कहा ठीक है। और इवन भारती में जो हाउसकीपर है वो भी यही बोलती है कि आपको ना बहुत नजर लगती है और आप पहन के रखा करो, नहीं तो आप ऑफिस जाने के पहले काला टीका पीछे लगा लिया करो कान के। शी ऑलवेज सेज दैट टू मी। सो मैंने कहा कि चलो ऐसे दिमाग लगाया नहीं, पहन दिया। और फिर अभी जब मैं हैदराबाद गई और फिर सीरीज ऑफ समथिंग 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 वाज हैपनिंग टू मी वन आफ्टर द अदर। So this person just comes and says that there was this gentleman जो बहुत strongly energy detect करते हैं, ग्रे हेड, बहुत सीनियर सिटीजन है। तो उन्होंने मुझे देख के कहा कि आपने कुछ ऐसा पहना हुआ है जो आपको डिप्लीट कर रहा है क्योंकि आपका ऑरा बहुत पावरफुल है। एंड लेकिन वो आपका ऑरा श्रिंक कर रहा है। फिर उन्हें ऐसे ही देखा तो मैंने वही नजरिया पहना हुआ था अपने हाथ में काले रंग का। तो उन्होंने इमिडिएटली मुझे बताया, फिर उन्होंने उसका कॉन्सेप्ट समझाया कि ये ईविल आई को एब्जॉर्ब करने के लिए होता है। और इतनी ईविल आईज कई बार होती हैं कि कभी भी काला धागा या काला ये जो भी हम पहनते हैं सोच के, बिकॉज इन इंडिया वी डू ऑल दीज थिंग्स, है ना। सो जब भी ये सब पहनते हैं, सो नेवर डू इट फॉर मोर देन अ वीक, बिकॉज एक हफ्ते में वो इतना सैचुरेट हो जाता है नेगेटिविटी से कि वो आपकी एनर्जी को डिप्लीट करना शुरू कर देता है, बिकॉज इट इज राइट नेक्स्ट टू योर बॉडी एंड दैट टू ऑन द रिस्ट, जहाँ पे हम नाड़ी भी यही से देखते हैं ना, पल्स। सो ही सेज दैट यू आर वेयरिंग इट हियर एंड आप इतने टाइम से, मैं तो 1.5 साल से पहना, मतलब आई वाज वेयरिंग इट फॉर द लास्ट 1.5 years। सो उन्होंने सबसे पहली चीज, फिर वो अपना उन्होंने कोई गैजेट निकाला जो उनका ऑरा डिटेक्ट करते ही रहते हैं। हमारे यहाँ पे भी वी हैड रोहित मिश्रा हु वाज ऑलवेज डिटेक्टिंग द ऑरा। मतलब इन लोगों का, ये लोग जो योगा में और चक्रास में डील करते हैं, तो वो भी योगा एंड चक्रास में ही डील करते थे। तो उन्होंने फटाफट अपना वो गैजेट निकाला, जैसे बंदूक होती है ना, पिस्टल वैसा। और उन्होंने मेरा ऑरा देखा तो मेरा थोड़ा श्रिंक हो रहा था। ऑफ कोर्स इट वाज गोइंग आउट ऑफ द बिल्डिंग, बट नॉर्मली वो बोलते थे कि मेरा ऑरा बहुत ज्यादा है, बट बिकॉज ऑफ दैट उन्होंने फिर वो निकाल के फिर मेरा ऑरा देखा एंड आई कुड सी दैट इट वेंट सो फार एंड वाइड, इट वाज नॉट इवन डिटेक्टेबल। फिर उन्होंने मेरे नजरिए का ऑरा देखा और वो माइनस में जा रहा था बिकॉज इतना ज्यादा वो एब्जॉर्ब होके। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया कि हम लोग ये जो हिंदुइज्म में भी वो धागा पहनते हैं ना, मतलब पूजा वाला धागा जो रेड या येलो कलर का होता है, एंड वी वेयर नजरियाज। So he said that any black thing, if you're or anything that you're wearing close to your body, maximum uski shelf life is 1 week. Usse zyada you should not keep it in your body because it has absorbed so much or whatever, and it is. So then he thought that, he said, work on your energy, your chakras, your energy. You don't need any support from outside. तो वो एक जो था मैंने mindlessly पहन लिया था ऐसे ही, that also he immediately said that just take it off and let go of it. It is not meant and we none of us should wear it. So these kind of things, so मुझे बहुत अच्छा लगा कि I think ये because of these things only ये सब पता लगता है कि ये फालतू की चीजें, कि ये वो रिंग पहन लो और लोग 5-5 उंगलियों में रिंग्स पहने रहते हैं और फिर भी मतलब there's one series of problems. So whatever astrology or whatever जो हम born हुए थे वो हमारी आज नहीं है। हमने बहुत ज्यादा कर्मास गुड एंड बैड क्रिएट किए हैं जिसकी वजह से। सो एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू ऑल दीज बुक्स, मतलब आई वुड रियली एडवाइज यू टू रीड द पावर ऑफ नाउ। मुझे पता नहीं वो यूट्यूब पे है कि नहीं है एज एन ऑडियो बुक, तो मेरे पास तो 2-2 हार्ड कॉपी है उस किताब की एंड आई हैव गिफ्टेड इट टू सो मेनी ऑफ माय फ्रेंड्स आल्सो इन द पास्ट, बिकॉज उसमें यही है, द पावर ऑफ नाउ, यू आर क्रिएटिंग योर टुमारो। वो जो इतने साल पहले आपके एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट बने थे, 40 साल पहले, 35 साल पहले, दे आर नॉट होल्डिंग एनी रेलेवेंस एट ऑल राइट नाउ। ओके, वॉट एवर इट इज, आपका करंट मोमेंट है, इस मोमेंट में आप बहुत अच्छा अपनी फ्रीक्वेंसी हाई रखो, अपने आप आपका नेक्स्ट मोमेंट एंड नेक्स्ट मोमेंट एंड नेक्स्ट मोमेंट अच्छा होता जाएगा। So these self-talk, affirmations, positive thoughts, feelings, words, all these are very, very important. And of course, forgiveness हमें करनी ही पड़ेगी क्योंकि हम अपने current moment को we are not going to spoil it.
And we don't want that kind of a future. We don't want a sick future. Okay, जो अब ये आई ओपनर है, वो जो यू कैन हील योर बॉडी जो लुइस की किताब है, वो ऑडियो बुक में है, वो आई ओपनर है. उसमें पता लगेगा कैसे इमोशंस, लाइक लुइस को खुद को कैंसर हुआ था और उन्होंने बताया कि obviously she was like, obviously it was because of the grudge that I had against these people, because she had got into pregnancy and that person left her or whatever. तो वो grudge वो carry करके रख रही थी. And you know, then she got cancer. उसके बाद से फिर उन्होंने ये किताब लिखी, You Can Heal Your Body, या सिर्फ Heal Your Body नाम है. And उसमें सारी इमोशंस ही है, सारी बीमारियों का रीजन इमोशंस है. So we have to work on emotions. That's why the feeling of gratitude and love that we cultivate in our life, उसकी वजह से emotional scale, हमारा emotional quotient high हो जाता है, जिसकी वजह से हमारी बीमारियां ठीक होती है. नहीं तो जिंदगी भर थोड़ी ना दवा पे जिएंगे, है ना. हम अपने आप ठीक कर लेंगे. वैसे भी gratitude में रहते हैं तो हमारी सबकी दवाइयां टेपर हो ही जाती हैं. Health gets better and better. And not just physically, emotionally and mentally also we become, you know, pretty strong and pretty much in control of our situation. Okay, so thank you so much, Reena, for reading so beautifully. So we'll be able to read so much today. Thank you, ma'am. Forgiveness is love in action. We'll read tomorrow. Forgiveness is love in action. किसी को forgive करने का मतलब है आप उनको प्यार दे रहे हो. So प्यार के मायने अलग होते हैं किताबों में. So this we'll read tomorrow. Anyone wants to share or add anything or share any experience, Victory? I think Archana ji wanted to share yesterday. मैंने उनका hand raise देखा था, but then we had to wrap up the session. Archana Gupta. Yes, I wanted to share yesterday, but sharing हो नहीं पाई. So may I share it now? Of course, you're very audible and with your radiant smile. So I wanted to share कि अभी मेरे नीज में प्रॉब्लम थी तो डॉक्टर ने उसको नी रिप्लेसमेंट के लिए बोला है. एंड मैं एग्री भी कर गई हूँ. तो हम लोग अपना मेडिकल इंश्योरेंस देख रहे थे कि उसमें कितना है क्या है. तो 2 लाख तो हमें पता था, पर 2 लाख और मिला और आउट ऑफ द ब्लू पता नहीं कहाँ से उन्होंने क्या, मेरे हस्बैंड ने क्या उसमें डिपॉजिट किया था क्या कि 25 लाख और मिले. तो दैट मीन्स कि मतलब वो एकदम अनएक्सपेक्टेड था. एंड वन मोर शेयरिंग की उसके लिए मैंने बहुत ज्यादा फिर ग्रेटिट्यूड किया. और कल ऐसा था कि कल मेरे हस्बैंड ने कहीं अपना वॉलेट गिरा दिया, मतलब रास्ते में कहीं गिर गया. एंड ही सर्च फॉर इट फॉर हाफ एन आवर, पूरा देखते रहे लेकिन नहीं मिला. फिर घर आके उन्होंने कुछ ही, उसमें सिर्फ 500 रुपए थे, पर घर आके उन्होंने सारे अपने कार्ड्स वगैरह ब्लॉक कराए. और लेकिन पता नहीं क्यों, आई एम सॉरी टू से दैट, बट मुझे ग्रेटिट्यूड करने की याद नहीं आई. बट मैंने कहा कि हो सकता है कि कोई तो उसको वापस कर सकता है. एंड आफ्टर एन आवर somebody came to my house, unknown person, वो यहाँ का रहने वाला भी नहीं था, कहीं और का था, और उसको वो पर्स मिला और उसको एक ड्राइविंग लाइसेंस उसके अंदर मिला. तो he came और आधा घंटा पौन घंटा मेरे घर के आसपास घूमते हुए वो किसी तरह मेरे घर पहुंचा. एंड he returned that wallet with everything intact in it. तो उसके बाद मैंने बहुत ग्रेटिट्यूड बोला कि मैंने सिर्फ ये बोला था कोई तो उसको वापस कर सकता है. एंड इट केम बैक. सो Words are very important. Words are very powerful. तो बस यही मेरी शेयरिंग थी. Yeah, और वैसे very भी good. इधर थोड़ा क्यूमैथ में भी वापस से मुझे काफी बच्चे वगैरह मिल रहे हैं, तो आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट आल्सो. एक्चुअली आप वो Really 2-3 महीने miraculous. जो यूएस चली गई थी तो उसमें थोड़ा वो हो गया होगा उसमें ना. थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया था, बट उसमें भी मैं खुश थी कि चलो मुझे अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिला. एंड एवरीथिंग विल बी फाइन आफ्टरवर्ड्स. मैंने उसमें कोई ग्रज नहीं डाला कि नहीं चलो चले गए तो कोई बात नहीं, वापस आ जाएंगे. Very good. Congratulations and congratulations on getting the wallet back. उस पर्सन ने जिसने आपको ला के दिया उसने अपनी पूरी आगे की जिंदगी संभाल ली है ये कर्मा करके. हाँ, तो वो मतलब मैंने इनसे बोला कि आजकल के जमाने में कहाँ ऐसे लोग होते हैं जो किसी को जानते पहचानते नहीं है. होते हैं ना, आप सब हो ना. आप सब लोग हो ना, ऐसे ही हो. आपको कोई वॉलेट मिलेगा, एड्रेस मिलेगा. आई एम श्योर दैट each of you will go and ensure that या तो आप उसको डंजो करा रहे हो या भी फास्ट से भेज रहे हो या कुछ ना कुछ कर रहे हो वो, या खुद जाके दे रहे हो वो दोगे जाके. आप सब हो ना, वैसे ही हो. एग्रीगेट की कोई चीज मुझे मिलती है तो उसको या तो छूना नहीं चाहिए अगर आपकी वो चीज नहीं है, और अगर आप उसको रिटर्न कर सकते हो तो यू शुड डू दैट. Yeah, very good. Congratulations.
हाँ या जी बॉम्ब रितु। स्क्वाड को बुला लें, जैसे वो सरोज जी के कारण बुलाया गया था बॉम्ब स्क्वाड को। हाँ राइट। मोहन नहीं तो जी के funny है, उसमें से हाँ, सोने funny की चीज़ थी वो। अशर्फियां बोलते थे पहले। हाँ। हाँ जी रितु। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैम मेरी भी एक शेयरिंग है। हाँ अ, जी। अभी तो इन प्रोसेस है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि हाँ मुझे एक बार जरूर शेयर करना चाहिए। मैं आपसे अप्रैल में मिली थी और मैंने आपको बताया था कि मेरे बेस्ट फ्रेंड को बहुत ज्यादा बिजनेस में लॉसेस चल रहे हैं, और इनफैक्ट इतना नेगेटिव जोन में नहीं मैंने उसे देखा कि ही वांटेड टू कमिट द सुसाइड आल्सो। वो और उसकी वाइफ दोनों की यही थॉट प्रोसेस चल रहा था। तो आपसे मिलने के बाद जो है, उस दिन वो मुझे मिला था ऑन दी वे। आई टोल्ड यू कि आज मैंने बहुत दिन बाद ना उसके मुंह से सुना था हाँ सब बढ़िया। तो ये आपकी पॉजिटिव वाइब से जो आ रही थी। उसके बाद मैंने उसके लिए लिखना शुरू किया, एफर्मेशंस लिखने स्टार्ट की। पहले भी लिख रही थी, आपसे मिलने के बाद थोड़ा और आपने जो गाइड किया उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखना शुरू किया। मैं आपसे मिली थी 4 अप्रैल को। उसके बाद 18 अप्रैल को माइंड में कुछ आया कि नहीं, मुझे मैं कम लिख रही हूँ, मुझे ज्यादा लिखना है, उसके लिए और ज्यादा लिखना चाहिए। तो आई स्टार्ट राइटिंग सिंपली। मतलब 108 को मैंने 5 से मल्टीप्लाई करके 540 टाइम्स जो है ना, सिर्फ सिंपली थैंक यू लिखना शुरू किया बस। और थैंक यू बस लिखते लिखते बस मैं यही बोलती थी कि उसके साथ सब अच्छा हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है। एफर्मेशन में मैं यही लिखती थी कि विजुलाइज करती थी वो, उसकी वाइफ, उसका बेटा, वो लोग बहुत अच्छी हेल्थ में है, बहुत एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। फिर 1 मई को मैंने जो है ना मेरा फ्रेंड और उसकी वाइफ दोनों का ना नाम चेंज कर दिया। आपकी वो वाली टेक्निक भी यूज की मैंने उसमें, नाम चेंज कर दो उनका। तो सिंपली था पहले तो नाम उनका जो था, उसके साथ नाम दोनों के नाम के साथ ना मैंने कुछ वर्ड्स ऐड ऑन कर दिए। और लकली आपकी टीचिंग से, यूनिवर्स की ब्लेसिंग से, सबसे अब जो है ना बहुत उनका जो है ना सब कुछ बढ़िया हो गया है। सब कुछ बढ़िया हो गया है। मतलब अ, अभी मैं हॉस्पिटलाइज थी तो मैं रजिस्टर साथ लेके गई हुई थी लास्ट कीमो के टाइम पे। तो उसने ना खोल के पढ़ा ये क्या लिखती रहती है इसमें, कि इसको हॉस्पिटल में भी चैन नहीं है, रजिस्टर साथ में लेके घूम रही है। तो उसने तब देखा, कह रहे ये क्या लिखा हुआ है तूने मेरे लिए, मेरी वाइफ के लिए, मेरे बेटे के लिए, ये क्या लिखती रहती है तू। उसने सब पढ़ लिया उस दिन। तो फिर ऐसे ऐसे फिर देखा, कह रही ये क्या तू रोज लिखती है। मैं कहा हाँ। तो कह रहा पागल है क्या, क्या क्या लिखती रहती है। मैं कहा "हाँ, मेरे को ये पागल वाली टेक्निक बहुत पसंद आती है"। अभी काफी सही है, बढ़िया है। हाँ बीच में जब मैं नहीं लिख पा रही थी बिकॉज ऑफ आर्म ना, तो तब मैं सिर्फ वर्बली जो है ना काउंट करती थी रोज। बीच में हुआ है कि जब ज्यादा हेल्थ वो हुई तो ठीक है, फिर सेकंड डे कर लिया। बट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर योर थैंक यू। टीचिंग। एंड रितु, इतनी बड़ी चीज है कि आप खुद मतलब बिल्कुल उस स्टेज से गुजर रहे हो अभी, और अभी आपकी कीमो चल रही है, उसके बावजूद आप इतने लोगों के लिए प्रे कर रहे हो। बिकॉज ऐसा कभी कुछ होता है तो आप बहुत कंज्यूम्ड हो जाते हो अपनी हेल्थ से। मतलब जनरली लोग अपने लिए, मुझसे भी पूछते हैं तो लोग अपने लिए पूछते हैं, मैं क्या लिखूं, मुझे ये चेंज करना है, मैं क्या लिखूं, मुझे ये चेंज करना है, मेरी जिंदगी में चेंज करना है ना। जबकि इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती भी नहीं है। वैसे तो आपकी प्रॉब्लम बहुत छोटी है, मुझे नहीं लगता कि लाइक कैंसर तो हमने बस नाम दे रखा है। एक्चुअली इट इज जस्ट समथिंग, इट्स अ वेरी मोमेंटरी काइंड ऑफ अ थिंग, और बहुत जल्दी आपकी बॉडी से तो चला ही गया है, खैर ठीक है। सो मतलब ऐसे में कॉन्स्टेंटली आप लोगों के लिए प्रे कर रहे हो, लाइक इवन मेरा तो कुछ ऐसी बड़ी अभी प्रॉब्लम भी नहीं थी जो स्किन का इशू हुआ था। So everything is okay, and you're constantly blessing me every day for my health and for your friends, business and all of that. इस तरह का हार्ट होना ही, कहते हैं ना, when you light the lantern for others, it will lighten up your own way. और किसी और के लिए जब कोई हीलिंग एनर्जी या ब्लेसिंग जाती है तो वो आप ही की जिंदगी में वापस मल्टीप्लाई होके घूम के आती है। So the quickest way to actually get a big victory is to pray for someone else, and this is the reason आपकी ऐसी लाइफ कंडीशन है कि आप रोज इस तरह शेयर कर रहे हो, और अभी भी आप अपने इशू के बारे में बताते नहीं हो, constantly talking about what you did for others and this and that, which is incredible. It will all come back to your life, and you will see that you will enjoy your health like anything, for the rest of your life. थैंक यू मैम, थैंक This यू is amazing. थैंक यू सो मच। So
So thank you everybody so much, and have a beautiful, beautiful Sunday. Thank you. And do your forgiveness. Thank you, ma'am. Thank you. Have many sharing. Bye. Have many Thank you, sharing. Deepika. Thank you. Thank you. Bye. Hello, ma'am. Thank I you. love you, ma'am.